Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on the jurisprudence, and in this series I have discussed certain important concepts relating to the jurisprudence. In the previous video, I have discussed with the schools of jurisprudence. In the previous video, I have discussed with the analytical school, dealing with the Austin, Bentham and Kelson. Today in this video, I am going to discuss with the Professor H.L.A. Hart, who was also known as analytical positivism. If we talk about the Professor Hart, he is also one of the greatest jurists of that time who belonged to the analytical school, and he was the professor at Brasenose College, Oxford, and he was regarded as the leading contemporary representative of the British positivism. His book Concept of Law was published in 1961, in which a very comprehensive reformulation of analytical positivism has been done. Hart's theory bridges the age-old gap and talks about the reality. His theory is mainly based on the primary and secondary roles, as well as relationship between the law and the society. His theory makes important modifications in the theory of Austin and Kelson. A very comprehensive reformulation of analytical positivism has been done by Professor Hart in his book Concept of Law, and his theory on the one hand builds on and on the other hand makes important modifications in the theory of Austin as well as Kelson. In the first place, he bridges age-old conflict between the theories of law. If we talk about the Professor H.L.A. Hart, he rejected the Austin theory of analytical positivism and expounded his legal theory, which is based on the relationship between the law and the society. And he favored analytical approach to law for a better understanding of it. His classical work, that is the Concept of Law, which was written in criticism of Austin theory. If we talk about the Professor H.L.A. Hart's conception of law, according to Professor Hart, law is the system of two types of rules, primary rules as well as secondary rules. According to Professor Hart, law is the system of two types of rules, which provides the key to the science of jurisprudence. That is the combination of two types of rules, primary as well as secondary rules. Law is the where there is law, their human conduct is made of in the sense of optional or obligatory. According to Professor Hart, law is the system of rules, a union of primary as well as secondary rules. Where there is law, their human conduct is made in some sense obligatory. Thus, the idea of obligation is at the core of rule. According to Professor Hart, he carefully analyzes the concept of social rule. He made distinction between the rules governing the behavior and habitual behavior. According to him, legal system is a system of rules which are social in nature because firstly they regulate the conduct of a member in the society, and secondly they drive the from human social practices. It is clear from the definition of given by Professor Hart in a legal system. Not only legal rules but also the non-legal rules exist, such as morality, customary rules, ethics, values, etc. He rejected Austin theory of law that was based on command theory. So Austin theory, that rule is a kind of command, was rejected by Professor Hart. He criticizes Austin for his notion concerning the nature of law as the order backed by threats with habitual obedience of such orders. According to Professor Hart, it is a system of rules, two types of rules. प्रोफेसर हट जी का क्या कहना है कि जो लॉ है दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूल्स, वन इज प्राइमरी रूल्स एंड सेकंड इज सेकेंडरी रूल्स. So these two type of rules combine to make a law. Which explains the nature of law, and he observed that union of these type of rules, these type of legal rules, is a most powerful tool to analyze the law. And his distinction of the primary rules
that is duty imposing rules, and the secondary rules, that is power conferring rules, is of great significance. So thus he made the distinction between these two types of rules. If we talk about the distinction between primary as well as secondary rules, the primary rules are the rules which impose duty upon the individuals, which are binding because of the popular acceptance, such as rules of kinship, family sentiments, etc. If we talk about the secondary rules, which are powerful confirming rules, power जो confer कर रहे हैं उनके ऊपर, allow the legislatures to modify their policies according to the needs of the society. If we talk about the primary rules, these being unofficial rules, they suffer from three major defects. यदि हम प्राइमरी रूल्स की बात करते हैं इनमें तीन तरह के डिफेक्ट की बात की गई है. कौन कौन से तीन डिफेक्ट है? अनसर्टेनिटी, static character, and inefficiency. If we talk about the secondary rules, these are in sense dependent on the primary rules. जो secondary rules होते हैं वो primary rules के ऊपर depend करते हैं. For they provide that human being may by doing or saying certain things. Thus, besides there is no agency for डिसाइडिंग अबाउट द प्राइमरी रूल्स. यदि हम प्राइमरी रूल्स की बात करते हैं तो इसको डिसाइड करने के लिए कोई एजेंसी हमारे पास नहीं है. प्राइमरी रूल्स इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स. प्राइमरी रूल्स क्या कर रहे हैं? कोई मतलब एक व्यक्ति को कुछ करने के लिए कह रहे हैं या उससे दूर करने को कह रहे हैं, और कोई ऐसी अथॉरिटी यहाँ पे एजेंसी हमारे पास नहीं है जो इन रूल्स को कहीं ना कहीं डिसाइड कर पाए. वाइल जबकि सेकेंडरी रूल्स की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्राइमरी रूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और वहाँ पे जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जा रही है, जो पावर जो कन्फर की जा रही है वो लेजिस्लेचर के द्वारा कन्फर की जा रही है, उनके द्वारा पॉलिसीज बनाई जा रही है. तो कम्बिनेशन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रूल्स, जो प्राइमरी रूल्स मैंने आपको बताए हैं और जो सेकेंडरी रूल्स मैंने आपको बताया है, तो प्राइमरी रूल्स मतलब जो ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं और सेकेंडरी रूल्स मतलब जो पावर कन्फर कर रहे हैं, और इन दोनों टाइप्स के रूल्स को मिलाकर ही लॉ का कम्बिनेशन बनता है. दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ रूल्स. तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हार्ट, तो हार्ट्स व्यू ऑन द लॉ एंड मोरलिटी, यदि हम बात करते हैं प्रोफेसर हार्ट की, तो उन्होंने लॉ एंड मोरलिटी के ऊपर भी कुछ अपने व्यूज दिए थे. प्रोफेसर हार्ट डज नॉट डिनाउंस द रोल ऑफ नेचुरल लॉ इन इज पॉजिटिविज्म. He contended that it is necessary for law and morality to have the certain elements of natural law as a logical necessity. If we talk about the Professor Hart, he asserts that law and morality are complementary and supplementary to each other. उन्होंने क्या बताया कि जो लॉ और जो मोरलिटी है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है, सप्लीमेंट्री भी है, इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ मोरलिटी. मोरलिटी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसके संबंध में 4 एट्रीब्यूट पाए जाते हैं. कौन कौन से 4 एट्रीब्यूट है? इंपॉर्टेंस, इम्यूनिटी फ्रॉम डेलिबरेट चेंज, वॉलंटरी कैरेक्टर ऑफ द मोरल ऑफेंसेस, and the forms of moral pressure which separate it from etiquette, custom or other social rules. तो ये 4 एट्रीब्यूट है जो मोरलिटी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं. तो he accepted that morality is necessary condition of the society and the law has a function to ensure that morality of the society does not disintegrate. नेचुरल की मोरलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. He accepted morality should come from within the society itself. And in other words, law cannot completely diverged from the concept of morality. भाई morality तो कहीं ना कहीं law के अंदर उसका बहुत बड़ा स्थान माना जाता है, उसको आप neglect नहीं कर सकते. And the natural law and morality is unwritten law which are being of divine origin. But this theory given by Professor Hart was also criticized. यदि हम प्रोफेसर हट के द्वारा ये जो थ्योरी दी गई है इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था. और वो कौन कौन से ऐसे आधार थे जिसके आधार पे इसको क्रिटिसाइज किया गया था? सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट क्रिटिसिज्म दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर ड्वार्किन, रोनाल्ड ड्वार्किन. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रोनाल्ड ड्वार्किन, प्रोफेसर हार्ट कॉल्ड ए लीगल सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ रूल्स. जैसे मैंने आपसे कहा कि जो प्रोफेसर हार्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो लीगल सिस्टम है दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रूल्स, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ रूल्स. वेदर ए लीगल सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स ओनली, क्या हम ये कहें कि जो रूल्स को मिला के ही केवल लॉ का जन्म हुआ है? प्रोफेसर ड्वार्किन ये कहते हैं कि हार्ट ऑन दिस पॉइंट
Professor Dworkin has pointed out that a legal system does not consist only rules but also principles. यदि हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर केवल रूल्स ही नहीं है, उसके अंदर प्रिंसिपल्स को भी स्थान दिया जाना चाहिए. इट आल्सो कंसिस्ट द प्रिंसिपल्स. Thus to call a legal system as a system of rules is not a proper. यदि हम कहते हैं कि जो लीगल सिस्टम है उस रूल्स का ही सिस्टम है तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. इसके अंदर प्रिंसिपल्स को भी स्थान दिया जाना चाहिए. प्रिंसिपल्स आर आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट देन रूल्स, क्योंकि प्रिंसिपल्स भी कहीं ना कहीं रूल्स की एक जगह जरूरी है. जैसे आप एग्जांपल लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच वाज एलोबरेटेड बाय आवर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन मैनी केसेस. जैसा आपको पता, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में प्रिंसिपल जो था इसको भी कहीं ना कहीं स्थान दिया गया था हमारी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के द्वारा. एंड आवर जुडिशरी पॉजिटिवली इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ये तो तो यहाँ पे क्या है, इफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट देन द प्रिंसिपल्स गेट प्राइमरी. यदि हम प्रिंसिपल और रूल दोनों को एक साथ मिला के चलें, यदि इनके कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं अराइज होगा तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाएगी. Also, the Justice Coke in Bohemond's case in 1610 has contended that if it is found that the law made by Parliament is contrary to certain moral principles, then such law could be null and void. आपने इसमें देखा था कि यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा ये कहा गया था कि यदि कोई भी प्रिंसिपल, यदि कोई भी कानून, यदि वो प्रिंसिपल मोरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ पाया जाता है तो वो पूरी तरह से नल और वाइड होगा. नेचुरली इसका हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स का भी काफ़ी बड़ा स्थान होना चाहिए. एंड हार्ट हैज़ फेल टू प्रोवाइड द ट्रू करेक्टर ऑफ लॉ. इस हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि जो प्रोफेसर हार्ट है वो ट्रू करेक्टर ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने में फेल रहे हैं. एंड प्रोफेसर ड्वार्किन मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूल्स एंड प्रिंसिपल. जो प्रोफेसर ड्वार्किन है उन्होंने रूल्स और प्रिंसिपल्स के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन करने की कोशिश की है, और जो प्रोफेसर हार्ट नहीं प्रोवाइड कर पाए थे. And he says that the legal system has to be conceived as an institution based on certain standards, principles, policies. It is the rule which determines the principles. For example, a doctor acting from higher possible moral motive decides to end the life of an aged person, incurable sick person, who is suffering from great and constant pain. And he does so. If he does so, then he has committed the crime. यदि कोई एक डॉक्टर किसी एक पेशेंट को जो काफ़ी दर्द से करहा रहा है और काफ़ी एज है तो उसको ये कहता है कि वो उसको मार देता है कि क्योंकि उसकी वो ये समझता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये उसको मारने से वो सही रहेगा, उसको छुटकारा मिल जाएगा. तो यदि वो मोरली ऐसा कर भी रहा है तो नेचुरली उसने एक क्राइम कमिट किया है. इट इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट ऑल द किलिंग्स आर अनलॉफुल. यदि हम इसकी बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, तो लॉ का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी भी किलिंग होती हैं वो अनलॉफुल नहीं कही जा सकती. एंड द प्रिंसिपल इज दैट ऑल अनजस्ट किलिंग आर अनलॉफुल. जितनी अनजस्ट किलिंग है वही अनलॉफुल होंगी. एंड द क्वेश्चन इज वेदर द एंथुसिया इज ये अनलॉफुल. भी एंथुसिया जो है क्या ये अनलॉफुल है भी, मतलब जो इच्छा मृत्यु जो दी जाती है क्या ये अनलॉफुल है. तो सो इट इज़ द रूल विच डिटरमाइंस द प्रिंसिपल. इसका मतलब वो रूल ही हैं जो प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करते हैं. एंड प्रोफेसर हार्ट हैज़ नॉट गिवन द इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल्स. एंड हार्ट्स थ्योरी इज नॉट सफिशेंट एज इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ड्वार्किन. तो प्रोफेसर ड्वार्किन के हिसाब से यदि वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर हार्ट है वो अपनी थ्योरी के अंदर वो जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, जितने भी मतलब रूल्स के अलावा, उनको ये एक्सप्लेन करने में असफल रहे हैं, इसलिए इनकी थ्योरी फेल हो चुकी है. एंड प्रोफेसर हट सेज दैट जजेस मेक ए न्यू लॉ बाय यूजिंग द डिस्क्रिशन इन स्ट्रॉन्ग सेंस. एंड प्रोफेसर ड्वार्किन रिजेक्ट्स द व्यू. भी यहाँ पे प्रोफेसर हट का कहना है कि जो जजेस है वो नए कानून को बनाते हैं और अपने एक स्ट्रॉन्ग सेंस में डिस्क्रिशन को यूज करते हुए बनाते हैं. तो ये तो प्रोफेसर ड्वार्किन है, इस व्यू को भी ड्वार्किन जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि जजेस हैज ए ड्यूटी टू अपील टू सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड नोट टू अदर्स. दीज प्रिंसिपल्स आर जेन्यून मोरल एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड दैट जजेस आर ड्यूटी टू बाउंड टू टेक दीज प्रिंसिपल्स इनटू अकाउंट इन देयर डिसीजन. जब भी कोई जजी डिसीजन देते हैं वो अपने डिसीजन को देते हुए उनकी ड्यूटी होती है कि वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलें, और वो प्रिंसिपल जिनको वो फॉलो कर रहे हैं वो जेन्युइन भी होने चाहिए, मोरल भी होने चाहिए, पॉलिटिकल भी होने चाहिए. और यहाँ पे जजेस की ड्यूटी है कि वो इन मोरल प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपना डिसीजन दे.
इसका मतलब यहाँ पे ये कहेंगे भी जजेज हैज ए लीगल ड्यूटी एंड नॉट ए मोरल ड्यूटी। इसका मतलब जो जजेस की जो ड्यूटी है वो एक लीगल ड्यूटी ना कि मोरल ड्यूटी है। इन व्यू ऑफ द लॉर्ड लॉयड, it is not possible to reduce all the rules of the legal system to rules which impose duties and to rules which confer power. He has raised doubts about the Professor Hart's concept of law as combination of primary as well as secondary rules, as it is always not possible. प्रोफेसर लॉयड के हिसाब से भी उन्होंने ये कहा है कि जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी लीगल सिस्टम के अंदर जो नियम पाए जाते हैं, उन सबको प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स के अंदर डिवीजन करना आसान नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। भाई ऐसे रूल्स जो ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं, दूसरे ऐसे रूल्स जो पावर कन्फर कर रहे हैं, उसके अंदर यदि हम डिवीजन करने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है कुछ रूल्स बाहर रह जाएंगे। और उन्होंने इसी के संबंध में एक डाउट रेज किया था कि जो प्रोफेसर हार्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कम्बिनेशन कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का कम्बिनेशन है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो प्रिंसिपल जो प्रोफेसर हार्ट के द्वारा दिया गया है, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसको आप कहीं से भी सही नहीं ठहरा सकते। तो दिस वाज द क्रिटिसिज्म विच वाज गिवन बाय प्रोफेसर फुलर। ये फुलर जी के द्वारा इसका प्रोफेसर हार्ट के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसाइज किया गया था। प्रोफेसर ड्वार्किन के द्वारा इसको कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया था। हार्ट आल्सो अनेबल टू प्रोवाइड द ट्रू कैरेक्टर ऑफ लॉ। इसके अलावा यदि आप देखें कि जो प्रोफेसर हार्ट है वो ट्रू कैरेक्टर ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं डिफाइन करने में असफल रहे हैं। बट दिस कंट्रीब्यूशन नोट वर्दी एज ए ब्रिज बिल्डर ऑफ नेचुरल लॉ टू पॉजिटिविज्म थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू फुलर्स क्रिटिसिज्म। यदि हम प्रोफेसर फुलर के क्रिटिसिज्म की बात करें तो फुलर जी ये कहते हैं, फुलर रिगार्ड्स द लॉ एज परपोजिव सिस्टम। जो फुलर जी है वो ये कहते हैं कि जो लॉ है वो एक तरह से परपोजिव सिस्टम है एंड द पर्पज ऑफ लीगल सिस्टम बीइंग ए सब्जेक्ट ह्यूमन कंडक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ रूल्स इन हिज लॉ इज एन ओट इज इनसेपरेबल। जो प्रोफेसर फुलर जी के हिसाब से जो इज एंड ओट जो दो फैक्टर है वो एक दूसरे से इनसेपरेबल हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, जिसको प्रोफेसर हार्ट ने कोई महत्व नहीं दिया है। तो दिस मीन्स वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ड्वार्किन एंड प्रोफेसर फुलर द थ्योरी गिवन बाय प्रोफेसर हार्ट हैज बीन फेल्ड। वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हार्ट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी रूल्स दैट इज सप्लीमेंट टू प्राइमरी रूल्स एंड सम ऑफ विच एम्पावर सर्टेन बॉडीज। So Professor Hart argued that the acceptance of these rules must be due to moral reasons. And according to Professor Fuller, acceptance of these rules rests in a perception that they are right and necessary. According to Fuller, Professor Hart advances a theory of judicial interpretation. According to Hart, there is no law other than the rule of recognition. While according to Professor Fuller criticized Hart concept of rule of law as it is used for the persistence of law. According to Professor Fuller law cannot be described in terms of nor moral oath, which is necessary step and lie behind these social facts. तो यहाँ पे हम ये कहेंगे जो प्रोफेसर हार्ट के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो पूरी तरह से सही नहीं बैठ पाया है, जिसकी वजह से इसको लगातार क्रिटिसाइज करते रहा, मतलब क्रिटिसिज्म मिलते रहे हैं। एंड हार्ट मेड द कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन द एनालिटिक। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हार्ट जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा है बाकी औरों के कंपेरिजन में, बिकॉज द हार्ट हैज मेड द इम्प्रूवमेंट इन द एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। उन्होंने एक तरह से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। एंड मोरलिटी इम्प्लिसिट इन द हार्ट कॉन्सेप्ट। जो आप ये देखेंगे कि जो ऑस्टिन जी थे या कैल्सन जी थे, उन्होंने मोरलिटी को कोई स्थान नहीं दिया था, बट प्रोफेसर हार्ट हैज इम्प्लिसिटेड morality in his concept of law, which is described as union of primary as well as secondary rules. And these rules being normative in character, set a standard of human behavior that obliges subjects for acceptance and observance of these rules beyond the threat. Thus, the Hart positivism has the scope of natural law as well as for morality, which has made him both positivism as well as naturalist. So this was all about the Hart concept of law, and that is one of the most important question for the examination point of view. If you have any doubt, then you must put down in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe this channel for the further. Thank you.